بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہائشی ہوں۔ میرے گھر والے کمزور اخلاق سے مالا مال تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ سب نے مجھ سے گرختگی سے بات کرنا شروع کر دی، کیونکہ میں نے ایک لڑکے کو پسند کر لیا تھا جو میری ہی کلاس میں پڑھتا تھا۔ جب میرے والدین دوسری جگہ شادی کرنا چاہتے تھے تو میں نے انکار کر دیا، اور پھر سب مجھ سے نالاں رہنے لگے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اچانک ہی میرا وجود ایک جن زادے کی قید میں چلا گیا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جن زادہ مجھے اپنے بس میں کر چکا تھا۔ میں اسی کے کہنے پر ہر الٹا کام کرنے لگی۔ میرے والدین بھی میری حالت سے پریشان رہنے لگے۔ کل تک جو میری پسند کی شادی پر غصے میں تھے، اب وہی میرے ٹھیک ہونے کی دعائیں کر رہے تھے۔ نسیم، تمہاری بیٹی بڑی پیاری ہے، اس کا کہیں رشتہ تو نہیں دیا ہوا؟ میں اور میری امی اچانک ایک دن خاندان کی شادی میں گئے تو وہاں ایک خاتون نے مجھے دیکھ کر امی سے پوچھا۔ مجھے اس قسم کی باتوں سے الجھن ہوتے تھے۔ جب بھی میں شادی بیاہ میں نہیں جاتی تھی، کیونکہ یہ خاندان کی شادی تھی تو مجھے جانا پڑا۔ نہیں باجی، ابھی تو نہیں دیا، امی نے رسان سے جواب دیا۔ اگر انکار نہ کرو تو میں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتی ہوں۔ میرے بیٹے کو تو تم جانتی ہو، تمہارے سامنے ہی پلا بڑا ہے۔ تمہاری بیٹی کو تو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے۔ ان خاتون نے بلا جھجک اپنے دل کی بات کہہ دی۔ چونکہ میں انہیں جانتی تھی تو ان کے بیٹے کو بھی دیکھا ہوا تھا۔ دکھنے میں اور کام کاج کے لحاظ سے وہ کافی بہترین شخصیت کا مالک تھا۔ مجھے اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور اس کے علاوہ کسی انسان کو اپنے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کا بیٹا تو ماشاء اللہ سے کافی سلجھا ہوا بچہ ہے۔ میں اس کے ابا سے پوچھ کر پھر بتاؤں گی۔ ابھی میں ہاں کہہ دوں، لیکن پوچھنا ضروری ہے ورنہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ امی اس پیشکش پر کافی پرجوش ہو کر بولی۔ ان کے ادوار سے خوب ظاہر تھا کہ انہیں یہ رشتہ بے حد پسند آیا ہے، اور وہ راضی بھی ہیں، جبکہ میرے دل میں تو ہول اٹھ رہے تھے۔ امی آپ سے بات کرنی ہے۔ کافی دیر تلک امی اور وہ خاتون دیگر کئی باتوں میں مصروف رہی۔ جب میں تھک ہار کر وہ دونوں ادھر ادھر ہوئی تو میں امی کا ہاتھ تھام کر انہیں ایک جانب کدھرے لے جا کر جھجک کر کہنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ امی کو کیسے اس رشتے سے انکار کے لیے رضامند کروں۔ ہاں کہو، کیا ہوا؟ گھر جا کر بات کر لیں گی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ مہمان ہماری جانب بھی دیکھ رہے ہیں۔ امی نے آس پاس کے لوگوں پر اچٹتی نگاہ ڈال کر مجھے ٹوکا، جبکہ مجھے وہیں کھڑے کھڑے بات کرنی تھی۔ امی، ضروری بات ہے نا، ذرا سائڈ پر آئیں۔ میں نے امی کو روحان سی صورت بنا کر دیکھا۔ وہ میرے چہرے پر امڑتی پریشانی دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی، جبکہ مجھے ڈر تھا کہ امی نے اگر ہاں کر دی تو جانے میرا کیا ہوگا۔ میں تو من پسند شخص کے بنا کسی کو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، جلدی سے بولو۔ امی نے مجھے غصے میں دیکھ کر جلدی بولنے کو کہا، اور میں لمبی تمہید باندھنے کی بجائے چند لمحوں میں بات ختم کرنے لگی۔ امی، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، میرے ہی اسکول میں پڑھتا تھا، میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کہیں تو وہ رشتہ لے آئے گا۔ میں نے سر جھکا اطمینان سے امی کے کان میں اپنی جانب سے التجا کی تھی، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ امی نے آس پاس کے مہمانوں کو ایک نگاہ دیکھ کر میرا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، آپ ان کو انکار کر دیں ابھی۔ میں نے امی کو اس خاتون کو انکار کرنے کا کہا۔ بس مجھے یہی ڈر تھا۔ تمہیں تو میں گھر جا کر بتاؤں گی۔ ابھی لوگوں کے سامنے تماشا بننے کا ڈر نہ ہوتا تو قسم سے سر کھول دیتی۔ امی نے مجھے دانت پر دانت جما کر کہا اور زبردستی مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے چہرے کے تاثرات یوں تھے کہ اگر بس چلتا تو وہ مجھے مار دیتی، لیکن چونکہ پرائے گھر میں ہونے کی وجہ سے وہ خاموش تھی۔ کھرا کر امی مجھے کمرے میں لے گئی اور میرے چہرے پر لگاتار تھپڑوں کی بارش کرنے لگی۔ میں نے لاکھ احتجاج کرنا چاہا، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بس یہی رٹ تھی کہ محبت کیوں کی، حالانکہ یہ میرے بس میں تو نہیں تھا، نہ ہی میں نے کوئی غلط فعل اپنایا تھا۔ امی، پسند کی شادی کا اختیار تو خدا نے مرد اور عورت دونوں کو دیا ہے نا، تو آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ میں نے کئی تھپڑ کھانے کے باوجود چڑھ کر امی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ جنگ خود ہی لڑنی تھی، سو میں حق پر ہوتے ہوئے ہار تو بالکل نہیں مان سکتی تھی۔ تم نے مجھے بنا بتائی یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟
तुम मुझसे मिलती भी रही हो? हमारी आंखों में धूल झोंकी। अम्मी ने बेयकीनी से मुझे जांचती नज़रों से पूछा। उनकी नज़रों में बेएतबारी थी, जिसका मतलब मैं बखूबी समझ चुकी थी। मुझे अम्मी की सोच पर किधरे रंज पहुंचा। अगर मैं ऐसा करती तो आज शादी का ना कहती। माँ बाप की इज्जत मुझे प्यारी है, तभी तो आपसे आकर अपने दिल की बात कह डाली, ये सोचे बिना कि आप मुझे इस मोहब्बत के जुर्म में मारने पर भी तुल सकती हैं। मैंने बेयकीनी से अपनी माँ को देखते हुए सर झुकाकर कहा और वहीं कोने में गिरकर रोना शुरू कर दिया। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। जाने क्यों वो मुझे शक की नज़रों से देख रही थी। बहन भाई मेरे स्कूल गए थे। अब्बा करीबी एक हवेली में चौकीदार थे। वो उधर होते थे, घर में कोई भी नहीं था, वरना न जाने मजीद क्या हो जाता। मैं तुम्हारे अब्बा को क्या जवाब दूंगी? हाय अल्लाह, ये तो अपना मुंह बाहर ही काला करके आई है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी गलत कामों में मुलव्वस हो गई। अम्मी भी पलंग पर बैठकर दहाड़े मारने लगी। उनको जाने क्या हो गया था, मेरे से उलझ कर भी वो मुझे ही कसूरवार ठहरा रही थी। अम्मी, खुदा का खौफ करें, क्यों तमाशा बना रही हैं? मैंने गुनाह नहीं किया कोई। यकीन करें मैं उससे मिलती भी नहीं हूँ। बस उसने शादी का कहा तो मैंने भी बता दिया। क्यों बात का बतंगड़ बनाकर मुझे रुसवा करना चाहती हैं? मैं एकदम उठकर अम्मी के पैरों में जा बैठी। अम्मी की आवाज़ बुलंद हो रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि ये बात बाहर जाए। तुमने कौन सा कोई कसर छोड़ी है? ये सोचा था कि तुम्हारे बाप की इज्जत उछाली जाएगी। अब क्यों इज्जत का खौफ है? पहले ही सोच लेती तो शायद ऐसा ना होता। अम्मी ने मेरे हाथ झटक कर नागवारी से कहा। उनके अंदाज में हकारत थी। मेरे हाथों को यूं झटका जैसे मैं कोई अछूत हूँ। मुझे दिली रंज हुआ। अम्मी, आपको खुदा का वास्ता चुप कर जाएं। मैंने मोहब्बत की है, कोई गुनाह नहीं किया, और शादी करना चाहती हूँ, कोई गलत काम नहीं जिस पर आप मुझे यूं सुना रही हैं। पसंद की शादी कोई गुनाह तो नहीं है, हक है मेरा, और ये हक खुदा ने दिया है, आप जैसे इंसानों ने नहीं। मैंने हाथ जोड़कर फरियाद की और रोते हुए वहाँ से निकल आई। मुझसे मज़ीद बातें सुनने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे लगा कि शायद मैं वालिदैन को मना लूँगी, लेकिन वो तो बात मानने को तैयार ही नहीं थे। 2 दिन तक मेरे से अम्मी ने बात ही नहीं की। तीसरे दिन वो अचानक मुझसे मुखातिब हुई। उससे कहो कि रिश्ता लेकर आए। तुम्हारे बाप को मैंने जानने वाली का कहकर राज़ी कर लिया है। अम्मी ने जब ये बात कही तो मैंने यकलख्त खुशी से अम्मी के गले लगना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ सामने करके मुझे रोक दिया। बस बस, ज़्यादा प्यार उमड़ जाए तो संभाल कर रखो। औरत का हक है, इसी बात को सोचकर खामोश होकर तेरा साथ दे रही हूँ, वरना माँ होने के नाते गिला है कि तुम मुझे पहले बता सकती थी। अम्मी ने निरूठेपन से गिला किया तो मैं समझ गई कि ये बस बहाने हैं, वरना वो मुझसे कायल हो चुकी थी। 2 दिन बाद ही वो रिश्ता ले आया। अम्मी ने उस रिश्ते की खूब हिमायत करके मना लिया था और शादी की तारीख 3 माह बाद की तय कर दी गई। मैं बेहद खुश थी कि खैर खैरियत से ये बाजी भी मैंने सर कर ली थी। मुझे अपने साथ किसी को लेकर जाना होगा, क्योंकि खाने पीने और फिर महल की सफाई के काम के लिए किसी की ज़रूरत है, तो मैं तो बस चौकीदारी कर सकता हूँ। अब्बा को हवेली के रिश्तेदारों में से किसी के महल में शिफ्ट कर दिया गया था कि वो वहाँ जाकर नौकरी करेंगे, और इस काम के लिए उन्हें मज़ीद भी किसी की मदद की ज़रूरत थी, और मदद करने वाले की तनख्वाह अलग से थी। तभी वो घर आकर अम्मी से मुखातिब थे, सादिया को साथ ले जाएं, ये तो वैसे भी घर में फारिग होती है, दूसरे बच्चों को तो स्कूल जाना होता है। अम्मी ने मुझे देखकर अब्बा को मशवरा दिया, जबकि मेरा नाम लेते ही मैंने चौंक कर सर उठाया और अम्मी को देखने लगी। ये ठीक रहेगा, सादिया साथ होगी तो काम भी हो जाएंगे और महल की अंदरूनी देखभाल का जिम्मा भी ये ले लेगी। अब्बा ने पुरजोश होकर खुशी से कहा। अब्बा भी जैसे मेरे नाम पर खुश हुए थे। सादिया पुत्र, तुम अपनी तैयारी पूरी रखो, सुबह हमें महल की जानिब रवाना होना है। अपनी ज़रूरी अशिया और कपड़े सामान तैयार रखना, क्योंकि वापसी तो हमारी हफ्तों बाद ही हुआ करेगी। अब्बा ने मुझे आवाज़ लगाई तो मैं जो चूल्हे के करीब बैठी सर झुकाए अनगिनत सोचों में गुम थी, वहाँ से उठकर उनके पास चली आई। अब्बा, मैं आपके साथ जाऊँगी? मैंने हैरत से कहा। आज तक मैं घर से बाहर किसी काम के सिलसिले में नहीं निकली थी, हत्ता कि दूसरी जगह जाकर अब्बा के साथ नौकरी करना भी काफ़ी मुश्किल अमर था। यही सोच मुझे वसवसों का शिकार कर रही थी और हैरानगी अलग। हाँ, कोई मसला है क्या? शादी भी करीब आ रही है, सो अखराजात होंगे, तुम भी 2 माह में कुछ कमा लोगी तो थोड़ा हौसला होगा।
अम्मा ने पहले मुझे तिनक कर पूछा और फिर मुझे भेजने का मकसद भी बताया। नहीं, मसला तो कोई नहीं है, बस वैसे ही पूछ रही थी। चलो ठीक है, मैं बावर्ची खाने का काम ख़त्म कर लूँ तो फारिग होकर अपना सारा सामान बांध देती हूँ। मैंने इकरार में सर हिलाते हुए कहा और रजामंदी दे दी, क्योंकि बात उनकी भी ठीक थी। शादी में 100 काम होते थे, चीज़ों की अशद ज़रूरत दरपेश आती थी और पैसों का होना ज़रूरी था। 2 माह अब्बा के साथ रहने में कोई मुज़ायका नहीं था। मैंने हामी भर ली कि इसी वजह से अम्मी भी खुश हो जाएंगी और अब्बा का बोझ भी थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, और ठंडे कपड़े भी रख लेना, ये ना हो कि भूल जाओ, भिजवाने वाला कोई नहीं है, तुमने वावेला मचा देना है। अम्मी ने फिक्रमंदी से मुझे पीछे से आवाज़ लगाई। अलबत्ता लहजे में थोड़ी सख्ती अभी भी कायम थी, जिसका उनसर मामूली सा ही था, जैसे वो मुझसे नाराज़ हो। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराई। नाराज़गी में भी वो मेरी फिक्र कर रही थी। अम्मी डाल लूँगी ना, आपने तो अफ्ताद मचा दी है, अभी मुझे कुछ सोचने तो दें, जो कुछ रखना हुआ ज़रूरी सामान में रख लूँगी, बेफिक्र रहें। मैंने भी जवाबन मुड़कर चिढ़ते हुए कहा और हंसकर वहाँ से चली गई। रात गए काम ख़त्म करके मैंने अपना सामान संभाल लिया और ज़रूरी अशिया भी रख ली। सुबह सवेरा होते ही मैं और अब्बा पहली बस में रवाना हो गए। महल में पहुंचकर जब मैंने देखा तो बेहद हसीन पुराने तर्ज का महल था। उसकी दीवारों का रंगो रोगन, नक्शो निगार बेहद हसीन थे। मुझे ये जगह बेइंतहा पसंद आई थी। आते ही मैंने और अब्बा ने अपना काम संभाल लिया। शाम को जब मैं खाना खाकर महल के दूसरे हिस्से में गई तो वहाँ अजीब व गरीब सी रोशनी का इर्तिकाज़ महसूस हुआ। उस रोशनी के साथ ही मुझे महसूस हुआ कि वहाँ कुछ है। मैंने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वहाँ से जाने लगी तो करीब रखा गुलदान गिरकर ज़मीन बोस हो गया और उस गुलदान में एक सुर्ख रोशनी के साथ सुर्ख खून के धब्बे भी गिरे। साथ ही एक फलक शगाफ कहका भी आस पास सुनाई दिया। मैं चीख मारकर उल्टे कदम वापस नीचे आई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। अब्बा, मुझे लगता है इस महल में कुछ है। अब्बा जब मुझे खाना खाने को बुलाने आए तो मैंने सर झुकाकर खौफजदा अंदाज में उन्हें बताया। क्या है? अब्बा ने चौंक कर देखा। उन्हें मेरे चेहरे पर खौफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ अजीब सा एहसास होता है, यहाँ कोई है। पता नहीं क्यों मुझे डर लगने लगा है। मैंने कपकपी से थरथरा कर कहा, जबकि ऊपर जो हुआ था मैं चाह कर भी नहीं बता सकती थी। न जाने क्यों मेरी जुबान पर एक ताला लग गया। चाह कर भी उन्हें सच्चाई से आगाह नहीं कर सकी। तुम्हारा वहम है, अकेले रहने में कभी कभी वहम हो जाया करते हैं। कुछ दिन रहोगी तो आदत हो जाएगी। परेशान मत हो, कल से मैं तो कहता हूँ कि महल की सफाइयाँ करवा लो। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ धरते हुए तसल्ली दी और महल की सफाई का हुक्म दिया। उनको लग रहा था कि फारिग होकर मैं ये वहम पाले हुए थी, जबकि हकीकत तो कुछ और ही थी जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। जी ठीक है, करवा लूँगी। मैंने आराम से इस बात में सर हिला दिया। दूसरे दिन मैं महल की दूसरी मुलाजमा के साथ महल में सफाई की सर तोड़ कोशिशें करने लग गई। निचले हिस्से की सफाई में तकरीबन 3 घंटे लग गए थे। सुबह फजर के बाद ही शुरू कर ली थी और 10 से पहले काम ख़त्म हो गया। अलबत्ता दूसरे हिस्से का काम बाकी था, इसलिए सारे अमल में मुझे यूँ महसूस होता रहा जैसे कोई महल में है। मुझे महल में किसी के कदमों की चाप महसूस होती। भारी भरकम किस्म की आवाज़ें आती। आमना, तुम्हें नहीं लगता कि इस महल में कोई है जो हमें देख रहा है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, छुपा हुआ है? मैंने आमना को अचानक मुखातिब किया। उससे चंद लम्हे पहले ही मुझे एक फलक शगाफ कहकर सुनाई दिया। नहीं बाजी, यहाँ तो 15 साल से कोई नहीं आया। महल के बड़े मालिक साहब की जब वफात हुई थी तो उनके दोनों बेटे बिरोने मुल्क अपने बाल बच्चों के साथ शिफ्ट हो गए थे। बड़े साहब की बीवी तो पहले ही वफात पा गई थी और ये महल सुनसान हो गया। उनके बेटों ने यहाँ पर मुलाजमीन रखकर महल की देखभाल करवाना शुरू कर दी थी। आमना मुझे उस महल के मालिकान और उनके आबा अजदाद की सारी कहानी सुना रही थी, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैं खौफजदा ही थी। अच्छा, तुम जाओ, बड़े कमरे को खोलकर सफाई करती हूँ मैं। तुम ये झाड़ू लगा कर आ जाना, मैंने आराम से आमना को कहा। बड़ा कमरा ऊपर वाले हिस्से में था। मैं वहाँ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सफाई की वजह से मुझे जाना पड़ रहा था। डरते डरते सीढ़ियाँ चढ़कर वहाँ पहुँची और दरवाज़ा खोलकर कमरे की चीज़ें दुरुस्त करने लगी। पुराने पर्दे अभी मैंने निकाले ही थे
کہ کمرے کا دروازہ ٹھک سے خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخیں دبائی۔ کون ہے یہاں؟ کوئی ہے؟ میں نے چلا کر کمرے کی چاروں اور نگاہ ڈال کر خوف سے پوچھا۔ میں ہوں۔ تمہیں صحیح لگ رہا تھا اس محل میں میرا وجود چاروں اور چکر کاٹتا ہے۔ اچانک ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور ساتھ ایک فلک شگاف کہکا جو مجھے سنائی دیتا تھا۔ لیکن تم ہو کون؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دل ہی دل میں جلتو جلالتو کا ورد کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ایک جن زادہ ہوں جو پچھلے کئی سال سے یہاں پر رہتا رہا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا دل تمہاری جانب کھینچتا چلاتا ہے۔ تمہیں بھی میری موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں خوشی سے جھوم جاتا ہوں۔ جن زادے کے منہ سے یہ سب سن کر میرے دل میں خوف کے گہرے سائے آ چکے تھے، یوں کہ جیسے میرا دل پھٹنے میں چند لمحے بچے ہوں۔ اس سب کے باوجود میں کھڑی تھی، ورنہ میرے پیروں میں جان نہیں رہی تھی۔ دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ میں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنے خوف پر قابو پا کر کہا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جنزادے کی آواز نے میرے پاؤں جکڑ لیے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے میرا ہاتھ تھاما ہو۔ میں نے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ تم دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خدا را دروازہ کھولو۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، میری شادی ہونے والی ہے اس سے۔ میں نے روحان سی ہو کر فریاد گناہ انداز میں التجا کی۔ تم مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے مجھے انکار کیا، میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری عمر یاد رکھو گی۔ اس مرتبہ جنزادے نے میرے ہاتھ تھامے تھے۔ میں نے پھر سے ہاتھ جھٹکے۔ باجی، کیا ہوا ہے؟ اچانک آمنہ نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے چہرے پر اڑی ہوائیاں دیکھ کر وہ حیرت سے مجھ سے پوچھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں، تم اس کمرے کی صفائی چھوڑو، دوسرے کمروں کی کر لیتے ہیں، یہاں تو صفائی پہلے سے ہی ہوئی پڑی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا اور اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل پھر بھی ڈر سے اندر ہی اندر کانپ رہا تھا۔ یہ رات کے پہر تم آگ جلا کر اس کے ارد گرد چکر کیوں کاٹ رہی تھی؟ دوسرے دن میرا منگیتر مجھ سے ملنے چلا آیا۔ اس نے آتے ہی مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر حیرانگی اور جانے کیا کچھ تھا، جبکہ میں اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کل رات 12 بجے کے قریب تم یہیں پر چکر کاٹ رہی تھی۔ میرے منگیتر نے محل کی پچھلی جانب ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ رات کو آیا تھا، لیکن ابا نے مجھے نہیں بتایا۔ میں سو چکی تھی، صبح اٹھی تو ابا نے بتایا تھا۔ لیکن میں تو سوئی ہوئی تھی اور تم یہاں کیسے آئے تھے، وہ بھی رات کے پہر؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ابا تو کوارٹر میں سوتے تھے اور محل کی پچھلی جانب کوئی نہیں جاتا تھا۔ مجھے اس پر حیرانگی ہوئی۔ میں تم سے ملنے آیا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ تم آج کل کہاں مصروف ہو، جو بات تک نہیں کرتی۔ لیکن یہاں اگر جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں تو صحیح معنوں میں چکرا کر رہ گیا۔ میرے منگیتر کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ مشکوک ہو رہا تھا۔ پھر اس کے انداز میں بھی ایک عجیب سی کھنک تھی۔ مجھے تو رات جنزادے کی باتوں نے صحیح معنوں میں چکرا کر رکھا تھا، اور اب منگیتر کی باتیں مجھے جانے کیوں یہ لگا کہ یہ سب کچھ جنزادے نے کیا ہے اور وہی اس کام میں ملوث ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا کہنا چاہ رہے ہو آخر؟ تمہیں میں کیسے یہاں نظر آ سکتی ہوں؟ میں تو سوئی ہوئی تھی، کل سارا دن محل کی صفائیوں میں لگی رہی، رات تھکن سے چور بنا کھانا کھائے بستر پر لیٹی تھی۔ میں نے نہ سمجھے سے اسے جواب دیا۔ میری سوئی آگ کے گرد چکر کاٹنے پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ اس پل میرا سر بھی گھوم رہا تھا جیسے کوئی نشہ ور دوا کھا لی ہو۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو یا پھر مجھے بتانا ہی نہیں چاہتی؟ آخر کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ دیکھو میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہاری بات کو ضرور سمجھوں گا۔ میرے منگیتر نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی امیز انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھے اپنی موجودگی اور مثبت احساس دلا رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر سا لگا کہ اگر میں اسے بتا دوں گی تو شاید وہ رشتے سے انکار کر دے۔ جنزادوں سے تو ہر انسان کو ہی ڈر لگتا تھا۔ کوئی بات ہوتی تو تمہیں بتا دیتی۔ شاید میں تمہارے آوازوں پر اتنا سوار ہوں کہ تم نے مجھے سوچ سوچ کر مجھے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ میں نے چند لمحے سوچ کر دیکھنے کا عمل بھی محبت کے رنگ میں رنگ دیا کہ جس سے محبت ہو وہ انسان کو ہر لمحہ اپنے آس پاس دکھائی دیتا ہے، خواہ حقیقت میں وہ کوسوں دور ہی کیوں نہ ہو، چہرے میں ہر بار وہی دکھائی دیتا ہے۔
तुम बता क्यों नहीं देती? आखिर क्या था जो तुम उस पल कर रही थी? तुम्हारे बाल खुले थे, तुम सर धुन रही थी। मेरे मंगेतर की सुई वहीं अटकी थी। वो मुझे सुनने को तैयार ही नहीं था। मैं नजरें चुराए जा रही थी। इसके अलावा मेरे पास और कोई हल नहीं था। तुम मुझे हरासा कर रहे हो। मैं सोई हुई थी। नहीं यकीन तो अब्बा से जाकर बेशक पूछ सकते हो। और खबरदार जो आइंदा मेरे साथ तुमने इस तरह का रवैया रखा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने यकलख्त गुस्से से उसे देख कर कहा और मुंह बनाकर वहाँ से चली आई, ताकि वो मुझसे दोबारा ये बात न पूछ सके, जबकि मुझे यकीन हो गया था कि इस बात के पीछे वही जिनज़ादा है। तुम्हें शादी से इनकार करना होगा, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं बड़े कमरे में कुछ सामान लेने गई तो फिर से दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने पहले की तरह खौफजदा होना छोड़कर डट कर खड़े होकर जिनज़ादे की बात सुनने को फोकियत दी, ताकि मैं खुलकर उससे बात कर सकूं। जितना डरूंगी वो मज़ीद मुझे डराएगा। मुझे मार दो ताकि मैं भी चैन पा सकूं। जब से इस महल में आई हूं तुमने मेरा जीना जीरन करके रख दिया है। आखिर क्यों मुझे सता रहे हो? लेकिन इससे पहले कि मैं उसे थोड़ा जज्बाती तौर पर हरासा करने की कोशिश करती, मुझे लगा कि ये हरबा भी आजमा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम उस शख्स से शादी रुकवा कर मुझसे शादी कर लो तो कुछ भी नहीं कहूँगा। जिनज़ादे ने वही हठधर्मी से शादी का रट्टा लगाना शुरू कर दिया और मैं दिल ही दिल में तेश खाई जा रही थी। मेरे बस में होता तो उस जिनज़ादे को रच के जलील करती, लेकिन बदकिस्मती से वो आग की पैदावार था और मैं मिट्टी की। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैं उसे पसंद करती हूँ, उसके अलावा अपने साथ किसी को भी नहीं सोच सकती। तुम मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, जब देखो डरा रहे होते हो। मैंने हकारत से डट कर कहा। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकी थी। मैं उसे ही मार दूंगा, फिर तुम करती रहना एक मुर्दे से शादी और पा लेना अबदी सुकून। जिनज़ादे ने कमरे की चीज़ें फौरन से ज़मीन बोस करते हुए कहका लगाकर मेरे जिस्म से रूह खींच ली। वो मेरे मंगेतर को मारने तक जा पहुंचा था और मैं खाली हाथ खड़ी तमाशाइयों में बैठी अपनी ज़िंदगी को उजड़ता देखने लगी, जैसे किसी और का जिक्र कर रहा हो। नहीं, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। खबरदार जो तुमने उसे कुछ कहा, वरना मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए चिल्ला कर कहा। मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे मेरा दिल डूब जाएगा, या फिर उस गम से ही मैं गिरकर दुनिया जहान से रुखसत हो जाऊंगी। तुम्हारी जान अब मेरे कब्जे में है। तुम खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर पहुंचाया तो मैं तुम्हारे साथ साहे की तरह बचा लूँगा। जिनज़ादे ने चंद लम्हे खामोश रहकर भरपूर कहका लगाकर मुझ पर एक सूर फूंका। मुझे सही मायनों में चक्कर आए। मेरे गिर्द एक दायरा तय कर दिया गया था जिसे चाह कर भी मैं ख़त्म नहीं कर सकती थी। मैं तुमसे जब मोहब्बत नहीं करती तो क्यों मेरे पीछे पड़े हो? ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं हुआ करती। एक इंसान और जिनज़ादे का कोई जोड़ नहीं, फिर क्यों मुझे सता रहे हो? बख्श दो मेरी जान और सुख से जीने दो। मैंने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा। अगर तुमने इनकार नहीं किया तो कल तुम उसे मरा हुआ पाओगी। मुझसे शादी कर लोगी तो उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या चाहती हो? जिनज़ादे ने कहा और उसी पर आमना कमरे में आ गई। मैंने रुख फेर कर अपने आंसू फौरन साफ किए ताकि उसे मेरी कैफियत का इदराक न हो सके। मैंने अपने आप को एक अजीब कश्मकश में डाल दिया था। अगर मैं अब्बा के साथ इस महल में ना आती तो आज मुझे ये रोना नहीं पड़ता, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था सिवाय पछतावे के। जो होना था और जो तूफान ज़िंदगी में आना था वो तो आ चुका था। सारी रात मैं बस जिनज़ादे की धमकियों को सोचती रही। अगर उसने मेरे मंगेतर को मार दिया तो मुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता। उसका जिंदा रहना बेहद ज़रूरी था और इस सब में मुझे एक मुश्किल तरीन फैसला लेना पड़ा। सारी रात मैंने रो कर गुजारी थी। दूसरे दिन छुट्टियां गुजारने मैं और अब्बा अपने घर चले आए। 2 दिन तो मैं खामोश रही, लेकिन तीसरे ही दिन मैं अम्मी के सामने जाकर खड़ी हुई और दिल में कई खदशात थे। रुसवा होने का डर भी था। मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैंने सर झुकाए अम्मी को मुखातिब करते हुए कहा, ये जानते हुए भी कि इस दफ़ा अम्मी ने मुझे काफ़ी सुनानी है। क्यों, क्या हुआ है? सब ठीक है। इतने अरसे से तुम हमें मनाती रही हो और अब कह रही हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। अम्मा ने मुझे हैरत से देखा और फिर बेयकीनी से मुझे देखने लगी। उनका हैरान होना बनता था,
जिस शख्स के लिए मैंने अम्मा की नाराज़गी तक सह ली थी, आज उसी से दस्तबरदार होना हैरत की बात थी। हाँ, सब ठीक है, लेकिन मुझे ये शादी नहीं करनी और कोई मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर किसी ने कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। मैंने साफ दो टोक अंदाज में बात करना ज़रूरी समझा ताकि एक ही बार बहस में बात ख़त्म हो जाए। दोबारा मौजू का छिड़ जाना मेरे लिए अजियत का बायस बन सकता था, जो कि मैं कतई नहीं चाहती थी। तुम ठीक हो? तुम्हारा दिमाग ख़राब लग रहा है। कैसी बातें कर रही हो? हमें बेवकूफ़ समझा है या फिर पागल समझ बैठी हो? सच सच बताओ क्या हुआ है, वरना मैं भूल बैठूंगी कि तुम मेरी बेटी हो। मार मार कर मैं जीना आराम कर दूंगी तुम्हारा। अम्मी ने माँ वाले जलाल में आकर मेरा बाजू पकड़कर झिंझोड़ते हुए मुझे होश दिलाना चाहा। वो समझ रही थी कि शायद मैं अपने होश हवास में नहीं हूँ, और वो मंगेतर पर भी शुकूक व शुबहात का इजहार कर रही थी कि उसने धोखा न दे दिया हो। आप मुझसे ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं बता दूं कि मैं कोई गलत कदम उठा लूँगी। बाद में पछतावा आप लोगों को ही होगा और रोना भी आप लोगों को ही है। मैंने सर्द अंदाज में सर झुकाए कहा। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अम्मी से सर उठाकर आंखों में आंखें डालकर बात कर सकूं। दिल ही दिल में जिनजादे को मैंने हज़ारों गालियों से नवाजा, जिसने मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे यूँ रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छी भली मुतमईन ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन अब एक पल में मेरी दुनिया ही उजाड़ दी गई। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने कि शादी पर सब ख्वाब पूरे करूंगी, मगर किस्मत में ख्वाबों का चकनाचूर होना ही लिखा था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, कुछ अरसा पहले जिसकी खातिर तुम लड़ती रही हो, आज क्या हुआ है कि तुम्हें सब यूं अचानक हर किसी से दस्तबरदार होना पड़ रहा है? कोई बात है, कोई मसला है तो बताओ, मिल बैठकर हल कर लेते हैं। बात ऐसे पूरी बरादरी में फैल गई है, तुम्हारे इनकार की वजह से तो इज्जत उछाली जाएगी। अम्मी ने अब की मर्तबा नरमी से मेरा हाथ थामकर मुझे मुतमईन करने के अंदाज में बात जानना चाही। वो समझ गई थी कि उखड़े अंदाज में पूछने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जबकि सीधे अंदाज में भी पूछने पर मैं नहीं बता सकती थी। आपको इज्जत और बरादरी की पड़ी है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अम्मी को सर्द निगाह से देखकर तलखी से कहा, लोग तुम्हारी भी इज्जत उछालेंगे, कीचड़ उछालेंगे। पहले क्या कम नाक में दम किया हुआ था जो तुम चाह रही हो कि अब मज़ीद ऐसा कुछ हो? अम्मी ने फिर से जलाल में आना चाहा। उनके गुस्से को हवा देने वाली भी मैं खुद ही थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। शादी मैंने करनी है तो मतलब कि मर्जी भी मेरी होनी चाहिए, और मेरी मर्जी यही है कि मुझे शादी नहीं करनी। मैंने दो टोक अंदाज में कहा और वहाँ से निकलकर दूसरे कमरे में आकर चिटकी चढ़ाकर अंदर बैठ गई। मैं ज़ारो कतार रोने लगी। अम्मी के सामने तो बड़ी हिम्मत और हौसले से खड़ी थी, लेकिन अब सारी हिम्मत उड़न छू हो चुकी थी। मुझे बताकर भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। जब वो मेरी हमशक्ल दिखा सकता था तो कुछ भी कर सकता था, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तुम किसी बात पर नाराज़ हो क्या? मैं सोई थी कि अचानक मेरी बहन फ़ोन लेकर मेरे पास चली आई और थमाकर मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई। चंद सानिये में फ़ोन थामे सोचूं में गुम रही, फिर नाचार कान से लगाकर पहले गला खंगार कर सलाम किया। हालचाल के बाद मेरे मंगेतर ने अचानक से सवाल किया, जिसका मतलब था कि उसे मेरे इनकार की खबर पहुंच चुकी थी। जब ही तो वो पूछ रहा था। उसके लहजे में गहरी खामोशी और मायूसी थी। मेरे दिल पर एक घोंसा पड़ा, लेकिन उस पर मुझे अपने जज्बात पर काबू रखना था, नहीं तो मैंने दो लफ्ज़ लबों से अदा किए। तो फिर शादी से यकदम इनकार और तुम्हारा रवैया बदल जाना, ये सब क्या है? अगर कोई बात बुरी लगी है, कोई वजह है तो बता दो। यूँ रिश्ता कैसे ख़त्म कर सकती हो? जानती हो ना कि हम दोनों ने दावे किए थे। क्या कुछ नहीं कहा था? वो तड़प कर बोला। उसके लहजे में बेबसी थी, इल्तिजा थी, जैसे वो भी बेयकीनी से मेरे अमल से शदीद किस्म के सदमे में था। कौन सा वादा और किस बात का जिक्र? मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं थी और ना कभी होगी। सब वक्ती जज्बात थे जो ख़त्म हो गए, इसीलिए शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती, सो इनकार कर दिया। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात को समझोगे और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करोगे। मैंने अपने आंसू का गला घोंट कर जज्बात को एक कुफल में बंद कर दिया। मेरा लहजा कपकपा रहा था, जिसे मैंने चंद पर चुप होकर काबू पा लिया और निहायत सर्द आवाज़ से एक लंबा जुमला कहा,
मैं जानती थी कि मेरी उस बात पर मैं बेवफा और जाने क्या कुछ कहलाई जाऊंगी, लेकिन उस पल फरार का यही रास्ता था, सो मुझे यही अपनाना पड़ा। तो वो सब क्या था जो तुम मुझसे कहा करती थी? हर बात जो इकरार में बोला करती थी। उसने तड़प कर मुझसे अहदो पैमान की वजाहत मांगना शुरू कर दी। वो अहद जो मुझे आज भी अजीज थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी की खातिर मुझे छोड़ने पड़ रहे थे, भुलाने पड़ रहे थे और उनको झूठ कहना पड़ रहा था। वो सब झूठ था, फरेब था। भूल जाओ और आइंदा मुझसे राब्ते की कोशिश मत करना। मैंने सख्ती से उससे कहा और फ़ोन बंद करने लगी कि अचानक से स्पीकर से उसकी दुख भरी आवाज़ उभरी। ऐसे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। वो वादे, वो कस्में, साथ निभाने का अहद कुछ भी भूल जाने के काबिल नहीं है। अगर होता तो शायद छोड़ देता, लेकिन यहाँ मेरी इज्जत नफ्स की बात है। इस हद तक आकर यूं खाली तहीदामा होना पड़ रहा है तो हरगिज़ नहीं रह सकता। बेहतर होगा कि अपना दिमाग दुरुस्त कर लो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले एक जुमले पर वो दुख से बोला था, लेकिन आखिर में वो मेरी रूह तक सरायत कर गया। गुस्से से भरपूर आवाज़ में वो मुझे बावर करवाना चाहता था, जबकि मैं खामोश सी हो गई। चलो देख लेते कि तुम क्या करते हो, ज़ोर ज़बरदस्ती या फिर कुछ और, लेकिन इसका नुकसान तुम ही बहुत जल्द उठाने वाले हो, इतना याद रखना। मैंने पुरसुकून अंदाज में कहकर उसे मज़ीद दहलाकर फ़ोन बंद कर दिया। मुझ में मज़ीद सकत नहीं थी कि उसकी जली कटी या सहमी बातें सुनती। वो मुझे जज्बाती तौर पर कमज़ोर कर रहा था और मुझे उसकी ज़िंदगी की खातिर अपने जज्बात को मुकम्मल तौर पर कत्ल करना ही था, वरना उसका नुकसान मैंने ही भारी कीमत में उठाना था, वो भी उसकी जान जाने की सूरत में। जिनजादे ने यही तो धमकी दी थी। दूसरे दिन मुझे बेहद बेचैनी सी हो रही थी। मैं एक दर्स में चली गई जो घर के थोड़ा करीब ही था। वहाँ मर्द और औरत दोनों का एहतमाम था। दर्स लेकर जब मैं वापस घर के लिए निकलने लगी तो अचानक मेरी निगाह अपने मंगेतर पर पड़ी, जो एक आलम के पास बैठे थे। जो बाजी मुझे दर्स देती थी वो आलम उसी के बड़े भाई थे जिन्हें मेरा मंगेतर जानता था। क्यों परेशान हो, खैरियत है? मैं वहीं खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। मेरा मंगेतर खामोश बैठा था। उसके चेहरे पर दुख की एक दास्तान रकम थी। आलम ने उससे उसकी परेशानी की वजह जाननी चाहिए। जी बाबा, सब ठीक है, मेरे मंगेतर ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, जबकि मैं जानती थी कि वो कितना ठीक है। जो जख्म मैं उसे दे चुकी थी उसके बाद ठीक होना कहाँ बनता था। बस एक दिखावा था, हालांकि चेहरे पर उदासी की एक दास्तान मौजूद थे। मुझे याद था जब एक दिन मैंने उसे कहा था कि फ़र्ज़ करो मैं बेवफाई कर लूँ तो तुम क्या करोगे। उसने सीधे लफ्ज़ों में मुझे जान से मारने की धमकी दी कि अगर मैं वाकई बेवफा निकली तो कोई बाइद नहीं कि वो मुझे मार ही देगा। इस बात का मैंने कई माह तक मजाक उड़ाया। मैं हंसती रहती कि मोहब्बत में बेवफाई की जाए तो मार देने का उसूल भी होता है, लेकिन ये गलत साबित हुआ था। बेवफाई के बावजूद भी एक सदमा लाहक था, मार देना तो जहन में नहीं था। तो फिर इतना चुप क्यों? आलम ने उससे खामोशी की वजह जाननी चाहिए। बाजी के भाई से भी मैं मिली हुई थी। वो काफ़ी मिलनसार शख्स थे, बेहद मोहब्बत से पेश आने वाले, इज्जत देने वाले। वो जिसको मैं पसंद करता हूँ उसने शादी से इनकार कर दिया है। पता नहीं इसे क्या हो गया, बड़ी अजीब व गरीब हरकतें कर रही है, समझ नहीं आ रहा। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो मेरा जिक्र कर बैठा, जबकि मुझे समझ नहीं आया कि आगे बढ़कर उसे रोकूं या फिर वहाँ से भाग जाऊं। मैं वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन मेरे कदम वहीं जम गए जैसे मैं वहीं जम चुकी हूँ या ज़मीन में दफन हो चुकी हूँ। कैसी हरकतें, मुझे बताओ, कोई हल निकाल लेते हैं। आलम ने धीमी आवाज़ में मोहब्बत से पूछा। बाबा, वो आधी रात को घूमती और न जाने कैसी अजीब हरकत अपना ली है, लहजा भी बदला हुआ है। उसने परेशानी में अपनी पेशानी की नस को दबाते हुए कहा। वो नस उमूमन तभी दबाता था जब वो परेशान होता या फिर जहनी तकलीफ से दो चार होता, और इस पल वो दोनों कैफियत में घिरा हुआ था। उसके साथ कोई जिन ज़्यादा है आसेब की सूरत में, और वो बहुत ख़तरनाक है। आलिम ने विर्द करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और 5 मिनट बाद आंखें खोलकर उन्होंने मेरे मंगेतर को हकीकत बता दी, जबकि मेरा यहाँ जमे रहना भी मुझे समझ में आ गया था कि जिन ज़्यादा मेरे साथ ही है, उसी वजह से मैं वहाँ जमी हुई थी। आप मुझे डरा रहे, इसका क्या हल है?
मेरे मंगेतर ने एकदम बेचैनी से हल निकालना चाहा। हल थोड़ा आसान और थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे अपने साथ परसों लेने आ जाना, फिर मैं सारा तरीक़ेकार बता दूंगा। आलिम ने किदरे धीरे से कहते हुए मेरे मंगेतर को मुतमईन करना चाहा, जबकि मुझे जिनज़ादे के अमल से खौफ आने लगा। मैंने लबों से कुछ लफ्ज़ अदा करना चाहे, लेकिन मेरी ज़ुबान भी कंग हो गई थी। चले ठीक है, मैं परसों सुबह सवेरे आ जाऊंगा, तब हाल बता दीजिएगा। मेरे मंगेतर ने सर हिला दिया। हाँ, तुम परेशान मत हो, अल्लाह के करम से सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। आलिम ने उसे तसल्ली दी और वो वहाँ से जब उठा तब मैं भी यकलख्त अपनी जगह से हिल गई थी। जिनज़ादे ने मुझे भी आज़ाद कर दिया था और मैं घर आकर शाम गए अब्बा के साथ ही महल की जानिब रवाना हो गई। महल आकर मुझे वही कह के और जिनज़ादे की धमकियाँ सुनने को मिलेंगी। 2 दिन बाद ही जब मेरा मंगेतर आमिल के साथ आया तो अचानक मेरे इर्द गिर्द एक धुआं सा उठना शुरू हो गया। इससे पहले कि वो दोनों मुझ तक आते, जिनज़ादे ने मुझे अपनी कैद में ले लिया। कौन हो तुम? इसको क्यों सता रहे हो? आमिल ने अपनी दबंग आवाज़ में पूछा। इसको बताया तो था कि शादी करना चाहता हूँ और मैं जिनज़ादा हूँ, लेकिन तुम लोगों को भूत सवार था मुझे कैद करने का। उस दिन मैंने सब सुन लिया था। आज इसे तुम दोनों बचाने आए हो? हा, जिनज़ादे ने कहकर लगा कर कहा। वो पहली मर्तबा एक रूप में सामने आया था, सुर्ख और स्याह रंगत, खौफनाक सूरत, जैसे कोई आसेब ज़दा सा चेहरा हो। मैं तो उसे देखकर ही जुरजुरी लेने पर मजबूर हो गए थे। इतना तो मुझे भी इल्म है, लेकिन तुम इसकी जान छोड़ने का क्या कुफारा लोगे? आमिल ने तामुल से पूछा। उनके चेहरे पर इत्मीनान देखने के लायक था। मैं कुफारा नहीं लूँगा, सिर्फ इसे ही हासिल करूँगा। हर हाल में जो करना चाहो कर सकते हो। जिनज़ादे ने हरदर्मी से कहा, जैसे मैं इंसान नहीं कोई चीज़ हूँ। अगर तुम इसका पीछा नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए उठा दूंगा। बेहतर है कि सीधी तरह इसे छोड़कर खुद ही चले जाओ। हामिल ने सख्ती से काम लिया। मैं नहीं जाऊँगा। अगर तुम लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती की तो तुम सबको भी जान से मार दूंगा। जिनज़ाद ने भी जुनून में आकर धमकाया। वो पानी लाओ और इस कमरे के चारों कोनों में डालो और 7 सूरह जिन पढ़ते जाना। हामिल बाबा ने पानी का जग मेरे मंगेतर को लाकर छिड़कने का कहा और वो वैसे ही उनके हुक्म की तामील करने लगा। पानी छिड़कते ही वो जिनज़ादा मछली बेआब की माने तड़पने लगा। उसकी चीखें बुलंद होने लगी। अब मुझे तुम लोग नुकसान पहुंचा कर बताओ। पहले तो तुम लोगों ने मुझे हल्के में लिया था ना। अब उसके जिस्म से नहीं निकलूंगा, जो करना है कर लो। अगर इसके जिस्म से निकालोगे तो ये मर जाएगी। मैंने तो सोचा था कि शादी करूंगा, लेकिन ये तो मेरी जान खतरे में डाल रही है। पहले ये मेरी मोहब्बत थी, अब मैं इसे भी जान से मार डालूंगा। मैंने तो सोचा था कि इसका चाहने वाला इस दिन आग के गिर चक्कर काटते देखकर खुद ही इनकार कर देगा, लेकिन ये मोहब्बत का जाननशीन अपनी मोहब्बत को बचाने की तरकीबें सोचने लगा और बेवकूफ़ सब कुछ उसे बता गई। अब इसकी सज़ा तुम दोनों को मिलेगी। वो जिनज़ादा ये कहने के साथ ही मेरे वजूद में आ घुसा और मेरे अंदर आते ही मुझे अपना अज़ियत में मिलता महसूस हुआ। मेरा दम घुट रहा था। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मेरे बोलने से पहले वो हंसता और मेरी आवाज़ बंद हो जाती, जैसे सांस ही घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगी। इसे कुछ मत कहना, गला छोड़ो इसका, मत मारो, छोड़ दो इसे, वरना मैं तुम पर पानी छिड़क दूंगा। मेरा मंगेतर मेरी कैफियत भांप कर एकदम चिल्ला कर बोला। हा, छिड़क लो, शायद असर कर जाए। पानी डालोगे तो ये भी मरेगी मेरे साथ ही। जिनज़ादे ने कहका लगा कर कहा और वो उसकी हालत का भरपूर फ़ायदा उठा रहा था। बाबा आप कुछ करें। मेरे मंगेतर ने पानी का जग वहीं पर रखकर आमिल से फरियाद की। वो मेरी हालत देख नहीं पा रहा था। ये पानी इसके पैरों पर डालो और 7 आयतुल कुर्सी पढ़ो। मैं भी विर्द करता हूँ, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। पानी के जग पर आमिल ने काफ़ी देर कुछ पढ़कर फूंका और फिर उसे थमा दिया। वो पानी आमिल की हिदायत के मुताबिक पैरों पर छिड़कते ही जिनज़ादा मेरे वजूद से निकलकर कमरे के गिर चक्कर काटने लगा, दीवारों से टकराते हुए चीखने लगा। उसकी आवाज़ में एक दर्द था, जैसे वो तकलीफ़ में हो। वो चक्कर काटते चीखते चीखते बिलाखिर वहीं ढेर हो गया। आमिल बाबा ने उस पर कुछ पढ़ा और एक लम्हे में वो एक छोटे से बूने की शक्ल इख्तियार कर गया और आमिल बाबा ने उसे एक बोतल में कैद करके उसे एक आग में फेंक दिया ताकि दोबारा जिंदा न हो सके।
तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? मैं तो वैसे सब जानते हुए भी हंसकर अपने मंगेतर से पूछने लगी, जब तुमने इनकार किया था और उससे पहले आग के चक्कर लगा रही थी, तुम्हारा बौखला जाना, बार बार डर कर इर्द गिर्द देखना मुझे चौंका गया था। मैंने अपने मदरसे के आलिम को भी बताया, फिर उन्होंने मेरे साथ आकर फिर मेरी मदद कर दी और तुम तो बिल्कुल अब ठीक हो। उसने इत्मीनान से मुझे देखते हुए कहा। मुझे उस पर बेहद प्यार आया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस जिनजादे के चुंगल से बच गई और ये तुम्हारी सच्ची मोहब्बत ही थी जिसने मुझे बचा लिया। मैंने अपने नरम अंदाज में उसे मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अब तो शादी से इनकार नहीं है ना? वो मुझे गुस्से से देखकर बोला। मैं जानती थी कि मेरे इनकार पर वो क्या कुछ कर चुका था, जिस पर अब वो गुस्से का इजहार करने वाला था, लेकिन वो मुझे खामोश रहकर हंसता देखकर मुस्कुरा दिया। बिल्कुल भी नहीं, जब चाहो बारात लेकर आ सकते हो, मैंने इजाज़त देते हुए कहा तो दोनों मुस्कुरा दिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।